अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss the exercise short questions of chapter number 6. Let's start our lecture. Question number 6.2. Define work and what is its system international unit. So आपने वर्क को डिफाइन करना है और आपने उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं वर्क को। एज वी नो कि साइंस की टर्म में वर्क तब डन होता है जब आप फोर्स एक्सर्ट करें और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे, सो वी कैन से दैट द वर्क विल बी डन। सो डिफाइन करते हैं इसको। वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी displaces it in the direction of a force. And work is a scalar quantity and it depends on the force acting on the body, displacement of the body and the angle between them. In system international unit of work is joule and it is defined as the amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. Thus, 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. And joule is a small unit of work, so its bigger unit is 1 kilojoule, which is 10 raised to the power 3 joule, and 1 megajoule, which is 10 raised to the power 6 joule. Clear? Now move towards the next short question, 6.3. When does a force do work? Explain. तो एक फोर्स जो है वो कब वर्क परफॉर्म करती है, तो आपने एक्सप्लेन करना है। सो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट मीन्स ही इज डूइंग सम वर्क। बट फिजिक्स के टर्म में वर्क का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। फिजिक्स ये कहती है कि जब आप फोर्स एक्सर्ट करें और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो तब वर्क डन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक लोड कहीं पर उठाकर खड़ा है और वो मूव नहीं कर रहा, सो ऑल्दो ही इज एक्सर्टिंग सम फोर्स बट ही इज नॉट मूविंग, सो वी कैन से द वर्क इज नॉट डन। इन फिजिक्स, वर्क इज said to be done when a force acts on a body and moves it in the direction of the force. Greater is the force acting on the body, longer is the distance moved by it. So, larger would be the work done. So, work is the product of force and displacement. And the displacement is in the direction of force. So, work done is equals to force multiplied by displacement, which is W is equals to Fs. Now, move towards the next question. Why do we need energy? कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो तो क्या आप कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो दैट मीन्स कि एक बॉडी को वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक बॉडी में अगर एनर्जी पोजेस करती है तभी वो इस काबिल होती है कि वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकती है। सो वी कैन राइट द आंसर एज we always need energy to do any type of work. The energy has an important and fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. We say that a body has energy when it has the ability to do work. Example, water running down the stream has the ability to do work. That means अगर स्ट्रीम में बहता हुआ पानी आ रहा है, सो दैट मीन्स कि उसमें भी एनर्जी पोजेस करती है। सो इट पोजेसेस एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइन्स। सो आवर बॉडी गेट्स एनर्जी stored in the food we take to perform various activities. Clear? Now the next short question. Define energy and give two types of mechanical energy. So आपने एनर्जी को डिफाइन करना है और आपने मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स भी बतानी है। So as we discussed in the previous question कि अगर एक बॉडी में एनर्जी है, so that means कि वो
ये एबिलिटी रखती है कि वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकती है या वर्क डन कर सकती है. सो वी कैन डिफाइन इट एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. और फर्दर आपने मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स भी बतानी है. एंड वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी possessed by a body is of 2 types, and they are kinetic energy and potential energy. And energy is a scalar quantity. Clear? Now the next question, 6.6. Define kinetic energy and drive its relation. तो आपने kinetic energy को define भी करना है और आपने उसका relation भी drive करना है. So हम ये कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी में मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस करे तो फिर हम कहते हैं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी है. सो ये वर्ड याद रखिएगा कि जहां भी वर्ड मोशन का आ जाए कि मोशन की वजह से एक बॉडी में एनर्जी मौजूद है तो हम कहते हैं कि वो फिर काइनेटिक एनर्जी है. सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो आपने इसको फर्दर ड्राइव करना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि एक बॉडी लेट्स सपोज जिसका मास m है और वो एक स्पीड v से मूव कर रही है. अब कुछ देर के बाद वो बॉडी स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. तो यहां पर हमने ये कहा कि ऐसी बॉडी में जो एनर्जी पोजेस करती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी और उसने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर लिया. So kinetic energy is equals to W, and we know that W is equal to Fs. So kinetic energy is equals to Fs. अब बॉडी स्टार्ट पे मूव कर रही थी तो V आए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू V. और कुछ देर के बाद फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉडी आकर रुक गई, दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0. So Vf is equals to 0. Now we know that according to Newton's second law, which is F is equals to ma, अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो m जो कि a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर दूसरी साइड पर जाकर वो m डिवाइड हो जाएगा. सो a इज इक्वल्स टू f ओवर m. अब यहाँ पर साथ एक नेगेटिव साइन शो हो रहा है आपको. सो a इज इक्वल्स टू माइनस f ओवर m एंड दिस नेगेटिव साइन इज बिकॉज दैट द मोशन इज अपोज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस. Clear? That's why a is negative. So now by using third equation of motion, which is 2as is equals to vf square minus vi square. So a acceleration की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे which is 2 into minus f over m into s and that is equals to 0 square minus v square. तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा minus 2fs over m is equal to 0 minus v square. So 0 minus v square it becomes minus v square, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 2fs over m is equal to v square. तो m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाकर ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2fs के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फर्दर वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो fs is equals to 1 over 2 mv square. So अभी हमने डिस्कस किया कि fs इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, तो इसकी जगह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 over 2 mv square. Now the next question 6.7. Define potential energy and drive its relation. तो आपने potential energy को define करना है. So we can define it as the energy possessed by a body due to its position is known as potential energy. Clear? And the gravitational potential energy, the energy present in a body due to its height is called gravitational potential energy. So let's suppose कि एक बॉडी जिसका मास है m, उसको आप एक हाइट तक रेज कर लेते हैं. लेट्स सपोज h हाइट है. सो अब वो बॉडी में एनर्जी जो प्रोसेस कर रही है हाइट की वजह से दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है. सो W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वी नो दैट W इज इक्वल्स टू Fs. तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा Fs के. यहाँ पर जो डिस्टेंस s है वो यहाँ पर हाइट की टर्म्स में कवर हो रहा है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू F into h and we know that the force F is equals to W and W is equals to mg. तो फोर्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे
mg. So potential energy is equals to mgh. Clear? So that's how we can derive this relation, and thus the potential energy possessed by a body with respect to the ground is mgh and is equal to work in lifting it to height h. Clear? Now the next question, 6.8. Why fossil fuels are called non-renewable sources of energy? तो ये non-renewable source of energy कौन से होते हैं? So वो energy sources कि जिनको आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो उनको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्हें आप कहते हैं non-renewable sources of energy. जैसा कि आपने पेट्रोल एक बार यूज़ कर लिया तो वो पेट्रोल आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. इसी तरह से आपने लकड़ी एक बार अगर आपने उसको जला दिया तो आप उस लकड़ी को दोबारा नहीं जला सकते. सिमिलरली कोयला अगर आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते. So, इस तरह से वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो अब फॉसिल फ्यूल को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉसिल फ्यूल जो हैं इनको सालों करोड़ों लग जाते हैं इनको बनने में. जैसा कि अगर मैं बात करूं कि एक दरख्त को ग्रो करने में काफ़ी साल लग जाते हैं. अब उसकी लकड़ी को अगर हम एक बार जला दें तो जलाने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई हम जिस स्पीड से हम इन फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते जा रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो प्रेजेंट वक्त में तो हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फॉसिल फ्यूल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें बहुत ही सीरियस एनर्जी क्राइसिस को फेस करना होगा और हमारे पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद नहीं होंगे जिससे हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें. सो दैट्स वाई हमें ये चाहिए कि हम इन फॉसिल फ्यूल्स को स्मार्टली यूज़ करें या फिर कोई ऐसे एफिशिएंट मेथड्स बनाएं कि जिनसे इन फॉसिल फ्यूल को हम सेव कर सकते हैं या फिर इनसे फर्दर हम कोई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमारी फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल करें. सो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एज फॉसिल फ्यूल टुक millions of years for their formation and they cannot be generated artificially in the short time, so they are known as non-renewable resources, and we are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs, and if we continue to use them at present rate, they will soon be exhausted. And once their supply is exhausted, the world would face serious energy crisis. Thus, fossil fuel would not be able to meet our future energy needs. Clear? Now the next question is 6.9. Which form of energy is most preferred and why? So इस चैप्टर में हमने कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया. तो उनमें से कौन सी एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है और क्यों प्रेफर की जाती है? सो सोलर एनर्जी इज द मोर प्रेफरेबल एनर्जी बिकॉज एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है कि इससे फर्दर कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं हो रही और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द सिस्टम, लाइक आपने एक बार सोलर पैनल कहीं पर लगा दिया तो फिर फर्दर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट ये सन की लाइट को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपको ये पोल्यूशन फ्री सप्लाई प्रोवाइड कर रही है. सो दैट्स व्हाई दिस एनर्जी इज मोर प्रेफरेबल फ्रॉम द अदर एनर्जीज बिकॉज इट कैन डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम सन एंड इट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो चीपर एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? आई होप ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.